वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम। वंदना करते। Lift up your hearts. Lift up your hearts before the King of Glory. Hallelujah. Precious Father, we thank you for the glorious access that you have given unto us into your most sacred presence. And this access is through the blood of your Son, Jesus of Nazareth. Father, thank you that there is a new and a living way that has been paved with the blood of the Lamb, with the precious blood of Yahushua HaMashiach. The blood of the Lamb just doesn't cover our sins for a year till the day of Yom Kippur, but the blood of the Lamb washes us and makes us whiter than snow. And not only washes us, not only reconciles us unto God, not only grants us our inheritance, not only makes us the adopted children of the Most High God, but also gives us access, royal access into your presence. Lord, we thank you for the glorious sacrifice of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. We bind our hearts, our souls with that blood sacrifice that Yahushua HaMashiach consummated on the cross of Calvary. Hallelujah. 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 Lord, we thank you for the glorious, awesome sacrifice on the cross of Calvary. We bind our hearts with that sacrifice. We bind our soul with that sacrifice. We bind our emotions with that sacrifice. We bind our families, our spouses, our children. We bind everything we do, Lord. Please bind your jobs and your businesses and your houses, your real estate, your properties, everything that you have with the blood sacrifice, with the sacrifice of the Lamb on the cross. Bind yourself with the cross. Cross of Jesus is our lifeline. Cross of Jesus is the very foundation of our existence in this world and in the world beyond. Hallelujah. Wrap yourself around the cross where precious Messiah suffered, bled and died. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद, मैं क्रूस की कुदरत को खोलता हूँ आज की सुबह, क्रूस की सामर्थ को खोलता हूँ. There is power in the cross. There is power in the cross. There is power in the cross on which Yahushua HaMashiach suffered and died. Hallelujah. The cross on which Messiah bled. His precious blood was poured out like a fountain when the Roman soldiers saw that he was already dead. He took a spear and plunged in his side, right from the very rib which Yah separated from the body of Adam and created his bride. Hallelujah. वही भाइयों और बहनों पसली, यहोवा परमेश्वर ने उस पसली के
पास से भाला मारा है ताकि मेमने की दुल्हन बचाई जाए। अगर आप पसली के पास से बहते लहू के सोते से धुले हो, और पसली के पास से बहते पवित्र लहू, लहू और पानी, ब्लड एंड द वाटर, उसका पवित्र खून और पानी, यीशु का लहू। परमेश्वर के वचन में लिखा है इफिसियों की पत्री में, प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को कलाम के निर्मल पानी से धोता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को कलाम के पानी से धोता है। एफिशियंस में पॉल द अपोस्टल लिखता है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह कलाम के पानी से धोता है, कलाम के निर्मल जल से धोता है, हालेलुया। ये पानी कलाम है, कलाम और खून। उसने कहा अंतिम रात्रि जब अपने चेलों के साथ बैठा, उसने कहा मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं ये अंतिम भोज तुम्हारे साथ करूं। He took the bread and broke it, giving thanks unto the Father, and said, This is my body which is broken for you. Take this and eat it. He gave his body to be eaten. Hallelujah. The DNA of Jesus is in his flesh. He says, My flesh is meat indeed. Hallelujah. He that eateth my flesh abideth in me. हालेलुया। ब्यारी के बाद उसने कटोरा लिया और धन्यवाद करके कहा, दिस इज द कप ऑफ द न्यू कवनेंट इन माई ब्लड। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने ब्लड का कवनेंट बांधा है। ये वाचा जिसमें आप बंधे हो, ये वाचा जिसमें आपका छुटकारा हुआ, आपकी रिडेम्पशन हुई है, आपको मोक्ष निर्वाण मिला है, ये वाचा जो आपको चंगा करती है, ये वाचा जिसने आपको हर एक आशीष दी है, ये वाचा जिसने आपको जीवित परमेश्वर की संतान बनाया है, ये वाचा जिसने आपके अधर्म पाप बदकारियाँ धो डाले हैं, ये वाचा जिसने आपको लेपालक पुत्र और पुत्रियाँ होने का अधिकार दिया है, ये वाचा जिसने आपको स्वर्गीय राज्य की मिरास दी है, ये वाचा उसके लहू की वाचा है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में समाया रहता है और मैं उसमें समाया रहता हूँ। हालेलुया। आपको मालूम भाइयों और बहनों, गॉस्पल, यू नो व्हाट गॉस्पल इज इन Hebrew? In Hebrew, in Greek the word is evangelion, but in Hebrew it's very very powerful word. सुसमाचार, चार सुसमाचार, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, the gospel. In Hebrew the word for gospel is besora. Besora. Do you know what besora means in Hebrew? It means flesh. The gospel is the flesh of Jesus. The word of God is the flesh of Jesus. And the flesh of Jesus has the DNA of Yahovah. Yahuwah's DNA, the DNA of Yahweh is in the flesh. Do you know what is kingdom? Kingdom of God, the kingdom of heaven in Hebrew? The kingdom of God in Hebrew is Besora HaMalchuta. It is the kingdom of the flesh of Jesus. It is the kingdom of the blood of Jesus. So Holy Communion is not just a ritual. It is very profound. It is participation in the very DNA of Jesus. Jesus gives you his DNA so that your sinful, polluted DNA, corrupted DNA that you received from Adam till where you are, all your forefathers are right there in the DNA. They are all living inside you through the DNA. आपके अंदर आपका पिता, आपकी माता का पूरा खानदान आपके अंदर है। Hallelujah. If I ask you where you were before you were born, the right plausible answer would be you were inside your father. If you are a female, then your X was inside your father, and the other X of you was in your mother.
23 autosomes and chromosomes were in your father, and 23 autosomes and chromosomes were in your father, mother and father. So when they both came together, you were created. So you existed even before you were born. You existed in the genome of your father and mother. What about your father and mother? They existed in the genomes of your grandparents. What about your grandparents? They existed in the genomes of your great great grandparents. If we all continue to trace backward, we will end up in the Garden of Eden. हम सभी आदम में थे, इसलिए हम पापी ठहरे. जब आदम ने पाप किया, पूरी ह्यूमन रेस पापी हो गई. क्यों? क्योंकि आप अपने पिता और अपनी माता में थे पैदा होने से पहले. आपकी माता पिता, आपके दादा दादी में, आपके दादा दादी, आपके दादा दादी के पिता में, ऐसे पीछे चलते जाएंगे. हम सभी आदम और हवा के जीनोम में थे, आदम के स्पर्म्स में, और हमारी आदि माता हवा के एग्स में थे. हालेलुया. तो ये डीएनए जो हमें मिला है हमारे माँ बाप के गर्भ से, इस डीएनए के अंदर एडम से लेके आपके माता पिता तक सभी के पाप मौजूद हैं. ये करप्ट डीएनए है. जो डीएनए हमें मिला है ये करप्ट है. इसीलिए प्रभु कहते हैं जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है. योर डीएनए एंड योर आरएनए is eclipsed by the sins of the former generations, and all those iniquities have been transferred from one generation to the other. If you remember, I gave you a very profound teaching on iniquity. I taught you about different words that are in Hebrew Bible. The word for sin is chata. The word for transgression is pisha. But there is a very profound word for iniquity. David, when he prays to God, the prayer of penitence after having committed horrible sin with Bathsheba and having her husband murdered in a very lethal conspiracy, David cries before God. He says, "In iniquity did my mother conceive me." Iniquity runs deep down in your DNA, in your RNA. Iniquity you received as a legacy from your parents, from your ancestors. Bible says man is not only sinner because he sins. Bible says man sins because he is a born sinner. आपको मालूम अद्भुत बात, परमेश्वर का कलाम ये नहीं कहता कि मनुष्य पाप करता इसलिए पापी है. परमेश्वर का कलाम कहता है मनुष्य पाप करता ही इसलिए है क्योंकि वो पैदा पापी हुआ है. हालेलुया. You committing sin doesn't make you sinner, but you were born sinner. That's your original identity in Adam. Therefore the last Adam came to redeem you. This last Adam is the Lord from heaven. 1 Corinthians chapter 15 verse number 47. Bible says the first Adam was from the clay. He was made out of dust. He was perishable. But the last Adam is the Lord from heaven. पहला आदम मिट्टी का था, लेकिन दूसरा आदम वो स्वर्ग से आया प्रभु है. आपने सुना होगा लोग कहते हैं यीशु मसीह 100% परमेश्वर है, यीशु मसीह 100% मनुष्य है, यीशु मसीह 100% परमेश्वर है. एब्सोल्युटली. कुलिस्सियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है इन हिम ड्वेल्स ऑल गॉडहेड बॉडली. पूरे का पूरा परमेश्वर उसमें समाया है. वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिबिंब है और उसकी सामर्थ और उसकी गरिमा की छाप है. वो अपने सामर्थी वचन से ब्रह्मांडों को थाम के रखता है. वो कहता है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा. वो 100% परमेश्वर है, संपूर्ण परमेश्वर है. लेकिन भाई और बहनों, यीशु मसीह आपके और मेरे जैसा मनुष्य नहीं है. हम हमारे पाप में डूबे माता पिता के डीएनए से पैदा हुए हैं. यीशु मसीह के अंदर यहोवा का डीएनए था. जिब्राइल से आके कहा परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा तुझ पे साया करेगा. You know what that literally means? Angel Gabriel says unto Mary,
The Spirit of the Most High God, the light, the glory of the Most High God shall wrap you around. And Holy Spirit will produce a glorious baby inside your womb. Holy Spirit will take 23 chromosomes and autosomes from Mary, but Holy Spirit will imprint the Virgin Mary by the DNA of God. Child of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का पुत्र एक ही है. Jesus is called the child of the Holy Spirit. Mary pregnant. She did not conceive with the help of man, but she conceived through the genomes of God. परमेश्वर के डीएनए से प्रेग्नेंट हुई. इसीलिए के काम 20 अध्याय के 28 वचन में लिखा है. एक्ट्स, the blood that was in the body of Jesus was the blood of Yah. यीशु मसीह की देह में यहोवा का खून है. हालेलुया. ये अद्भुत खून, कुर्बानी का खून, अलौकिक खून, इस खून में रहिए, इस खून में गुंद जाने दीजिए अपने वजूद को. हालेलुया. इस खून के साए के नीचे रहें 24/7. इस खून की ओट से बाहर मत निकले. अगर इस आप प्रोटेक्ट रहेंगे. ये वो शक्तिशाली हेज है, यीशु के खून, जिसको शैतान भेद नहीं सकता. आइए लहू की महिमा गाएं. तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम. तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम. खुद में डबोता हूँ, खुद को लहू में डबोता हूँ. तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता. तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ. तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ. Lord Jesus, your blood is alive. Lord Jesus, your blood is so precious. Lord Jesus, your blood is full of glory. I abide in your blood. Your blood is my dwelling. Your blood is my strong tower. Your blood is my refuge. तेरा खून मेरा कफारा है. आपको मालूम कफारा का मतलब क्या होता है? कफरत हिब्रू वर्ड है ये, कफार. हालेलुया. सुनिए ध्यान से. परमेश्वर ने नूह को आर्क बनाने का आदेश दिया. परमेश्वर ने नूह को पूरी पैमाइश दी. आपको मालूम, भाई और बहनों ध्यान से सुनिए, जो पासवान है वो मुझे ध्यान से सुने. जब भी परमेश्वर ने किसी को कोई काम करने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने सबसे पहले उसे आवाज़ लगाई. फिर परमेश्वर ने उसे अपनी स्वर्गीय एबिलिटी दी, और फिर परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय तेल से उसे अभिषेक किया. और आपको मालूम, जितने लोगों को प्रभु ने बुलाया
उनमें से अधिकतर लोग वो काम करने के लिए राजी नहीं थे। वो सभी लोग, कोई बोल नहीं पाता था, थथलाता था। कोई कहता था मैं तो ऑर्डिनरी किसान हूँ, मेरी कौन सुनेगा। कोई कहता था मैं तो छोटा सा गडरिया हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। तो परमेश्वर उन्हें कहता था तुम नहीं, मैं तुम्हारे संग रहूँगा। तुम मेरी एबिलिटी से, मेरी पावर और मेरी स्ट्रेंथ के द्वारा ये काम करोगे। अगर आप प्रभु के दास हो, सेवक हो, ध्यान से सुनिए। आप अपनी एबिलिटी से कोई काम करने की कोशिश मत कीजिए। कोई भी स्वर्गीय काम अर्थली एबिलिटी से कभी हो नहीं सकता। जरूब्बाबिल जो दाऊद की लिनेज से है और उसे आग है परमेश्वर के काम के लिए, वो टेंपल बनाने आया है। यहोवा के टेंपल के लिए आग है उसे, लेकिन बहुत विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है उसके विषय में मैंने आपको बताया एक दिन। जकराया चैप्टर 3 वर्स नंबर 1 to 5 में जो हाई प्रीस्ट है जाशुआ, उसको कोर्ट रूम में सम्मन किया गया, हेवनली कोर्ट रूम में। एंड सेटन इज एक्यूजिंग हिम बिकॉज होल द लीवाइट्स एंड द प्रीस्ट्स दे आर करप्ट, they have polluted themselves, they married heathen pagan women and they intermingle their blood with them. They cannot serve the most high God. Everything is corrupt in Israel. जो इज़राइल में रह गए हैं और जो वापस आ रहे हैं लौट के, जरूब्बाबिल अपने बड़े ज़ोर से टेंपल बनाना चाहता है। जरूब्बाबिल को पॉलिटिकल कवरिंग भी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा गवर्नर था पर्शियन एम्पायर में, और उनको डिक्रीज मिली। आपको मालूम, जूडा को 4 डिक्रीज मिली हैं फ्रॉम द पर्शियन एम्पायर दैट वाज रूलिंग अ वेरी बिग कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, वेरी वेरी पावरफुल पॉलिटिकली, एंड ही इज़ अ स्पिरिचुअल मैन। लेकिन प्रभु यहोवा जकरिया नबी के द्वारा अपना कलाम भेज के जरूब्बाबिल को समझाता है, इट्स नॉट बाय पावर, इट्स नॉट बाय माइट, बट बाय माई स्पिरिट सेथ द लॉर्ड। ना तो बल से होगा, ना शक्ति से होगा, पर मेरे रूह के द्वारा होगा। हालेलुया। भाई और बहनों, आपने पवित्र आत्मा के चरणों में बिछना है। हम अपनी कुव्वत से कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। और मैं आपको बताऊं, जिसको भी प्रभु ने कोई काम करने पृथ्वी पे, प्रभु ने उसे पहले चाहता है एग्जैक्टली हेवन को पृथ्वी पे उतारा जाए। प्रभु चाहता है पृथ्वी हेवन की कॉलोनी हो। प्रभु ने मूसा को पवित्र पहाड़ पे 40 दिन 40 रात रखा। पूरे का पूरा नक्शा जो था वो मूसा के अंदर डाउनलोड कर दिया। पूरी टेंपल, आपको मालूम कि चीजें थी जो खेमा यहोवा के लिए, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स हैं, लेकिन यहोवा ने डाउनलोड कर दी मूसा। और कि मेरी को बनाने में सुनारों की जरूरत पड़े, करने वाले कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगी, लोहे का काम करने वाले कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगी, मेरा काम करने के लिए एम्ब्रॉयडरी करने वालों की, मेरा तंबू का काम करने के लिए हाथी के दांत का काम होना बीच में ज़रूरी है। नगीने जड़ने वाले लोग चाहिए बीच में, लेदर का काम करने वाले लोग चाहिए बीच में, हर तरह के छोटे छोटे काम करने वाले कारीगर लोग चाहिए। तो प्रभु यहोवा मूसा से क्या कहता है, जो आत्मा मैंने तेरे ऊपर डाला है, उस आत्मा में से निकाल के मैंने 70 लोगों पे डाल दिया आत्मा। मूसा के अंदर कंप्लीट ब्लूप्रिंट डाउनलोडेड था। God took out of Moses and God put upon the other people, and that glorious tent where God would come and reside was created. तो आपको स्वर्ग से नक्शा, अगर आप वो मिनिस्ट्री करना चाहते हैं जो प्रभु की ओर से है, then seek him and ask him rather than just launching impetuously by yourself.
हालेलुया। तो जो खेमा प्रभु ने दिया मूसा को बनाने के लिए, और जो मैं आपको बता रहा आर्क दी प्रभु ने नूह को बताने के लिए, परमेश्वर ने उसकी सारी माइन्यूट डिटेल दी नोहा को, हाउ द आर्क वॉज टू बी बिल्ट। और आपको मालूम जब आर्क बन गई, इट वॉज अ massive colossal, you know, piece of wood, huge. It took 120 years almost to build it. Noah and his sons, his family continued working building the ark. वचन में लिखा, God was waiting patiently during the days when the ark was being built. तो प्रभु नूह से क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। जब आर्क बन गई तो प्रभु नूह से कहता है कि एक लिक्विड बना, मैं फिर आपको बताऊंगा, और प्रभु कहता है उससे पेंट कर दे आर्क को, पूरी ह्यूज आर्क को, बाहर से भी अंदर से भी। इंग्लिश की बाइबल में वर्ड पिच लिखा है, दाउ शैल्ट स्मीयर द आर्क विद द पिच फ्रॉम विद इन एंड विदाउट। अंदर से बाहर से पूरी आर्क को पेंट किया गया पिच से। हिंदी की बाइबल में लिखा राल, खून रंग की पिच तैयार की, जिससे पूरी की पूरी आर्क को पेंट किया गया अंदर से बाहर से। आपको मालूम हिब्रू वर्ड उसके लिए क्या है? वो जो लाल रंग की राल थी, उसके लिए इब्रानी शब्द क्या है? आप सबको सुनाई दे रहा है? प्लीज़ मैसेज लिख के बताएं, इफ़ यू ऑल कैन हियर मी। हालेलुया। जो पिच जिससे पूरी आर्क को पेंट किया गया अंदर से और बाहर से। हालेलुया। सुनाई दे रहा है सबको? थैंक यू जीसस। जिस पेंट से, लाल रंग के, मरून रंग के, उसे पेंट किया गया आर्क को अंदर से बाहर से। आपको मालूम उसका वो असली वर्ड क्या है? वो असली वर्ड है कपरोत या कफार। कफार, कफारा। यीशु मसीह आपका और मेरा कफारा है, अटोनमेंट है। अटोनमेंट, छुटकारे का लहू है यीशु मसीह आपका और मेरा। वो लहू जैसे पेंट से पेंट किया गया आर्क को। आपको मालूम वो 8 लोग कैसे बचे? वो 8 लोग केवल उस लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं बचे, वो 8 लोग बचाए गए उस कफार के द्वारा। आपको मालूम वही शब्द जो वहाँ पे आता है नूह की किश्ती के समय, जब प्रभु कहता है कफार लगाना, वही शब्द जब परमेश्वर मूसा को आर्क ऑफ द कवनेंट, वाचा का संदूक बनाने के लिए कहता है, वाचा के संदूक के ऊपर एक ही सोने के पीस से बनाया गया, उसे मढ़ा गया लकड़ी के ऊपर, और उसके ऊपर करूब बनाए गए, करूब। और करूबों के पंख एक दूसरे से मिलते थे, और करूब बहुत ही हैरान होके किसे देख रहे हैं? वो जो मर्सी सीट है, जो टॉप है, उस अयद के संदूक का टॉप हिस्सा था ऊपरला। आपको मालूम उस टॉप हिस्से का को क्या कहते हैं हिब्रू में? मर्सी सीट को कफार। कफार ये वो जगह है जहां यहोवा ह्यूमन सिन से डील करता है और ह्यूमन सिन को फॉरगिव करता है। कपरोत, कफारा, यीशु मसीह आपका और मेरा कफारा है। यीशु मसीह का लहू आपका और मेरा कफारा है। यहोवा परमेश्वर मूसा से 5 बार कहता है, जो टोरा है, पेंटाट्यूक, पहली 5 किताबें, प्रभु मूसा से कहता है कि वो जो करूबों के पंख जहाँ फैले हैं और जहाँ पे कफार है, लहू है, उसके ऊपर साया करेगी और मैं तुझसे वहाँ पे ही मिला करूँगा। परमेश्वर से मिलने के लिए पुराने नियम में एक ही जगह थी, सुन लीजिए, और वो थी कफार के ऊपर। कफार के ऊपर जो लहू था कफारे का, उसके ऊपर यहोवा की हजूरी साया करती थी, यहोवा का जलाल फड़फड़ाता था, वहाँ से यहोवा बोलता था। दैट वॉज द ओनली मीटिंग प्लेस। हालेलुया। तो कफार के संग जुड़े रहें, यीशु मसीह का लहू है ये। यीशु मसीह के जलाली लहू के साए के नीचे बने रहें, यीशु मसीह के लहू के गीत गाएं। आपको मालूम पास्टर अर्नेस्ट मल, मैं रहा बहुत साल, वो मुझे अपना बेटा मानते थे और बहुत साल हमने इकट्ठे मिनिस्ट्री किया।
पास्टर अर्नेस्ट मल के सेवकाई जो जो उन्होंने गानों की, म्यूज़िक की जब मिनिस्ट्री शुरू की, उससे पहले मैं आपको बताऊं, मुझे 30 साल हो रहे हैं प्रभु में चलते। उससे पहले मैंने कभी उस समय कोई वर्शिप लीडर और म्यूज़िक बैंड और ये वो कुछ नहीं सुना था हमारे, खास करके देसी लोगों में। इवन कि दूसरे लोगों में भी इतनी ज़्यादा हाइप नहीं दी गई थी वर्शिप 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 मिनिस्ट्री को। अभी कई चर्चेस के अंदर तो लोग वर्शिप की वर्शिप कर रहे हैं, जो वहाँ पे वर्शिप होती है उसकी वर्शिप करने जाते हैं। दे आर ड्रॉन, ओ व्हाट अ ग्रेट वर्शिप, वो वर्शिप लीडरों की वर्शिप कर रहे हैं, और वो इवेंचुअली एक कल्ट बन जाता है। जो चीज़ आपको यीशु मसीह की रियल प्रेजेंस से दूर ले जाती है, दैट इज़ अ कल्ट। इट कुड बी एनीथिंग, यू नो, यू कुड बी जस्ट वर्शिपिंग द वर्शिप। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज गिरती हैं इसकी वजह से। अभी हमारे हमारे इंडिया में वर्शिप मिनिस्ट्री को इतनी हाइप दी गई है। किसी मिनिस्ट्री में एक प्रीचर को बुलाते हैं, वर्शिप लीडर को बुलाते हैं, वर्शिप लीडर को उससे 5 टाइम्स ज़्यादा ऑफरिंग देते हैं प्रीचर से। मतलब कि परमेश्वर के कलाम से ज़्यादा वो और वो गाने क्या हैं? मैं आपको बता रहा था, अर्नेस्ट मल के गाने स्वर्ग से दिए गए थे। अर्नेस्ट मल ने यीशु मसीह के ब्लड के गीत गाए हैं, और अर्नेस्ट मल के बाद ही वर्शिप लीडर टर्म आई है देसी लोगों के अंदर, पहले कोई भी नहीं थी। मैं उस ज़माने की बात बता रहा हूँ आपको। तो गीत कौन से गाए जा रहे हैं? गीतों का कंटेंट क्या है? क्या उनके अंदर कलाम है यहोवा का? क्या उनके अंदर मसीह की सही डॉक्ट्रिन में लिखे गए हैं गीत वो, या ऐसे ही बस जो दिल में आ रहा लोग गाते जा रहे हैं? यीशु मसीह के लहू के नगमे गाइए। आपको मालूम, मेथोडिस्ट चर्चेस जो थी उनका पुराने हिम पढ़िएगा आप। मैंने बहुत पुराने से पुराने मेथोडिस्ट चर्च के हिम्स देखे, जब जो जो वैसलियन पीरियड था उसके हिम्स देखे पुराने, वो ब्लड के गीत गाते थे, यीशु मसीह के खून की आराधना करते थे। और आपको मालूम, अर्नेस्ट मल के कई गीत हैं जिसमें डायरेक्ट यहोवा की आराधना की जा रही है, और किसी चीज़ की ओर फोकस नहीं है, डायरेक्ट यहोवा की आराधना। तो वही भजन गाएं। और मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ, ज़बूर गाइए, साम्स 150 साम दिए यहोवा ने हमें ऑलरेडी। 150 भजन तो आपकी बाइबल में है, वो क्यों नहीं गाते आप? वो गाइए, क्योंकि वो यहोवा का कलाम है। हालेलुया। आइए गाएं मिलके। अर्नेस्ट मल जी ने जो गीत लिखा, हालेलुया। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं। देखिए किसको महिमा सीधी मिल रही है? हमारे पिता यहोवा को। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ, परम पिता की सना, परम पिता की सना सना सना। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मुक्तिदाता बख्शनहारा, मुक्तिदाता बख्शनहारा, पालनहारा वही, पालनहारा वही। झुक झुक जाओ, शीस नवाओ,
झुक झुक जाओ, शीस नवाओ, सबका सहारा वही, सबका सहारा वही। यीशु मसीह तेरे जैसा दूजा कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ, परम पिता की सना सना सना, मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हालेलुया। दुआ मांगें, अपने अपने जीवन को कफारे के साथ बांधें, कफारे के लहू के साथ। हालेलुया। अगर आपकी जीवन की नाव को अंदर और बाहर से कफार नहीं लगा है, पिच नहीं लगी है, तो आप जो तूफान, जो महामारी, जो प्लेग, जो जल प्रलय आने वाली, उससे बच नहीं पाएंगे। केवल कफार बचा सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परस्तेश के फूलों को चुनकर तेरी नजर मैं करूं, परस्तेश के फूलों को चुनकर तेरी नजर मैं करूं, तेरे ही चरणों में झुक कर तेरे ही रूह से भरूं, तेरे ही चरणों में झुक कर तेरे ही रूह से भरूं, छू मुझे मैं जैसा भी हूँ, अपनी मामूरी से। दुआ करें, सब मेरे साथ प्रार्थना करें, मेरे पीछे पीछे बोलें। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद, हेवनली फादर थैंक यू। स्वर्गीय पिता तेरी महिमा हो। मेरे पीछे कहें अवीनु मलखीनु, अवीनु मलखीनु, अवीनु मलखीनु, अवीनु मलखीनु, अवीनु मलखीनु, अवून द्वाश मायो, अवून द्वाश मायो, अवून द्वाश मायो, अवून द्वाश मायो, तेते ही माल खुदा, तेते ही माल खुदा, अवून द्वाश मायो, तेते ही माल खुदा, अवून द्वाश मायो, तेते ही माल खुदा, अवून द्वाश मायो, तेते ही माल खुदा। ओ हालेलुया। तेरी महिमा स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के लहू के लिए, यीशु मसीह की महान कुर्बानी के लिए, पवित्र कफ़ार के लिए, पवित्र कफ़ारे के लिए। मेरे संग कहें, प्रभु मैं कफ़ारे में छिपता हूँ, मैं अपने आप को कफ़ारे में छिपाता हूँ खून के। प्रभु मैं अपने आप को कफ़ारे में छिपाता हूँ, मैं अपने ख़ानदान को उस कफ़ारे में छिपाता हूँ, अपने जीवन को, अपने घराने को उस कफ़ारे में छिपाता हूँ। लॉर्ड आई कवर माई सेल्फ, माई हाउस होल्ड अंडर द कफ़ार, अंडर द कफ़ोरत, under the kafara, under the precious blood of the Lamb.
यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू की जय, तेरे पवित्र लहू की जय। यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू की जय, तेरे पवित्र लहू की जय। यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू की जय, तेरे पवित्र लहू की जय। तेरे पवित्र लहू के साए के नीचे आते हैं खुदावंद। एक एक जन को मैं तेरे पवित्र लहू के साए के नीचे लाता हूँ। जितने लोगों ने प्रभु तेरे वचन को सुना, तेरी आवाज़ को सुना, एक एक को तेरे खून के साए के नीचे लाता हूँ, तेरे लहू के साथ बांधता हूँ इनके जीवनों को। लॉर्ड, आई इन्वोक योर ब्लड ओवर देम। I invoke the blessing that are hidden in the blood. Lord, I invoke the blessing. I invoke the atonement that is hidden in the blood, the redemption, the sozo, the salvation that is hidden in the blood, the healing, Lord, that is hidden in the blood, the well-being that is hidden in the blood, the victory, Lord, that is hidden in the blood, the prosperity that is in the blood, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I thank you for the blood. I thank you. I cover everyone under the blood. तेरे लहू की जय जयकार हो। यीशु मसीह तेरे लहू की जय जयकार हो। तेरे पवित्र लहू की जय जयकार हो। तेरे पवित्र लहू की जय जयकार हो। प्रभु, हम तुझे महिमा देते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया। तुझे जलाल देते हैं। हालेलुया। Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. We will meet at 3 p.m. Again, the Lord bless you all.